Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 2 of the chapter Gravitation, and this video is for class 9 students. So students, last class रे आमे ए chapter को start करतले and आमे discuss करतले about what is the meaning of gravitation and what is the Newton's law of gravitation. तो आमे discuss करतले जे जदि दुटा body थिबे having masses m1 and m2 and if r is the distance between them, let me draw the figure here. Suppose am pakhare duita body achi, tar mass hochi m1 and m2 and the separation between the two bodies is r. Then the force of gravitation between these two bodies is given by F equal to capital G m1 m2 by r square. Is that clear? So m1 m2 are the masses of the two bodies and r is the separation or distance between them. So the Newton's law of gravitation states that the force of gravitation between two objects or between two masses varies directly as the product of the masses of the bodies, and it varies inversely as the square of the distance between them. So this is the formula to calculate the force of gravitation between two objects. And this capital G is a proportionality constant. It is known as the universal gravitational constant. And what is the value of G? G ର value होची 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg to the power minus 2. So आमे ए formula use करके आमे very easily calculate करि परिबा what is the gravitational force between two objects. Okay, तो लास्ट क्लास रे मु गोटे क्वेश्चन पचारथिली जे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. देन फॉर एग्जांपल ए रूम रे आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई हैव ए कूलर देयर, आई हैव ए वॉल देयर, आई हैव टेबल देयर, दिस इज द व्हाइट बोर्ड. इट मीन्स देयर इज ए अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस व्हाइट बोर्ड एंड दैट वॉल. तमने से वॉलटा ए व्हाइट बोर्ड को अट्रैक्ट करूची, बट दिस व्हाइट बोर्ड इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द वॉल. कौन पाई? जदि ए व्हाइट बोर्ड ऊपर किछि फोर्स अप्लाई होची बाय दैट वॉल एंड दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, देन कौन पाई ए जो व्हाइट बोर्डटा मूव करू नाही? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज आमे जो देखुचे जे व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. This is the expression. तो आमे देखिबा the value of G. Just look at the value of G. G रो value केते ना 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg to the power minus 2. ठीक अछि. तब देखो this value of G is very small. 10 रो power केते अछि minus 11. त माने this G is a very small quantity. त माने जदि आमे एबे calculate करिबा what is the force between this white board and the wall. For example, suppose मैं कहिबी जे a white board रो mass केते, suppose the mass of the white board is 5 kg. Okay, a white board रो mass केते ना 5 kg. and suppose मो front रे जो wall अछि से wall रो mass केते, suppose the mass is 500 kg. Okay, the mass of this whiteboard is 5 kg and for example suppose the mass of the wall is 500 kg. तो हमें देखिबा जे what is the force of gravitation between this whiteboard and the wall. तो हमें कौन करिबा ना suppose assume करा जे the distance between the whiteboard and the wall is 3 meter. Suppose the distance are equal to 3 meter. Okay, and how to calculate the force? F केते हबो ना use this formula G m1 m2 by r square. So in place of G मु केते पुट करिबी 6.67 into 10 to the power minus 11. Then in place of m1 I will put 5, in place of m2 I will put 500 divided by r square means 3 square. ठीक अछि. तो केते हे जिवो 6.67 into 10 to the power minus 11 into एटा हे जिवो 2500. तो 2500 को मैं लिखुची 25 into 10 to the power 2 divided by 3 रो square केते आसीबो 9. Okay,
सो एटा केते हिजबो 6.67 इनटू देखो ये 10 टू दी पावर -11 अच्छी ये अच्छे 10 टू दी पावर +2 तो एटा केते हिजबो एटा हिजबो 10 टू दी पावर -9 इनटू 25/9 25/9 विल बी अराउंड 2.7 और 2.8 तो ताको मु माने अप्रोक्सीमेटली 3 लिखि दोची ओके सो आमे एठी केते पाइले 6.67 इनटू 3 तो एटा केते हिजबो एटा हिजबो अराउंड 20 आसीबो ठीक अछि तो आमे केते पाइले 20 इनटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन दिस इज द फोर्स बिटवीन दिस व्हाइट बोर्ड एंड द वॉल तो आमे देखु छे एठी जे ये जो फोर्स पाइले से फोर्स रो वैल्यू देखो जस्ट लुक एट द वैल्यू ऑफ द फोर्स दिस फोर्स इज वेरी नेग्लिजिबल 10 रो पावर केते आसुची -9 ता माने ये जो फोर्स टा एते स्मॉल जे सेटा हमकु जणा पड़े नाही दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दिस व्हाइट बोर्ड एंड द वॉल इन फ्रंट ऑफ मी इज वेरी नेग्लिजिबल एंड दैट फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू क्रिएट मोशन इन द बॉडी एंड दैट्स व्हाई हमर डेली लाइफ रे आमे जो देखु हम चारि पर जो ऑब्जेक्ट सब अछि तांको भितर आमे अट्रैक्टिव फोर्स को फील करि पाउ नाही बट आमे जति बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट नबा फॉर एग्जांपल आमे द अर्थ कंसीडर करिबा अर्थ रो मास केते ना 6 इनटू 10 टू द पावर 24 kg आ यदि आमे कंसीडर करिबा द मास ऑफ सन रो मास आसीबो अराउंड 10 टू द पावर 30 kg एई ऑर्डर रे आसीबो तो जदी ऑब्जेक्ट रो मास बहुत लार्ज हला माने डिफरेंट प्लैनेट देखिबा डिफरेंट स्टार्स देखिबा तो से सब मैसिव ऑब्जेक्ट देखले तो आमे कोन करि परिबा से मैसिव ऑब्जेक्ट केस रे आमे गोटे एप्रिसिएबल अमाउंट रो फोर्स देखि परिबा बट जदि हमर कम मास रो ऑब्जेक्ट अछि हमर चारि पर जो ऑब्जेक्ट अछि हैविंग लेस मासेस तो से केस रे ए जो फोर्स आमे पाइबा से फोर्स रो वैल्यूटा एते कम आसीबो जे इट कैन नॉट क्रिएट ए मोशन इन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई आमे हमर चारि पर जो ऑब्जेक्ट अछि ताको भितर अट्रैक्टिव फोर्स रहउची but that force is very negligible and that's why we cannot notice them okay so this is all about this Newton's law of gravitation एथिर आ गुड इंपोर्टेंट पॉइंट तुमको मन रखिबार अछि व्हाट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर्स आमे f केते पाइले f पाइले g m1 m2 by r square तो देखो एठी ए फॉर्मूला रो आमे किछि कंक्लूजन एबे ड्रा करबा व्हाट आर द कंक्लूजन सपोज मो पाखरे दीटा ऑब्जेक्ट अछि से दीटा ऑब्जेक्ट भितरे इनिशियली डिस्टेंस r थिला सपोज m1 and m2 are the masses of the two objects and r was the separation between them जते बेले ए दीटा ऑब्जेक्ट भितरे सेपरेशन r थिला सेही केस रे the force of gravitation between these two bodies was how much f ठीक अछि जते बेले m1 आ m2 भितरे डिस्टेंस r थिला सेही केस रे सेमान को भितरे अट्रैक्टिव फोर्स बा द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन केते थिला f थिला जदी मबे कोन करबी तांको भितरे सेपरेशन को डबल कर देबी r थिला ताको 2r कर देबी फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस वाज 5 cm एबे देखो मु 10 cm कर देबी माने द डिस्टेंस विल बी डबल्ड जदि मबे डिस्टेंस को डबल कर देबी ता माने द डिस्टेंस बिकम्स 2r द न्यू डिस्टेंस बिकम्स 2r तो एबे मास को मु चेंज करनी मास सेम अछि से दीटा सेम ऑब्जेक्ट नै छी मास चेंज करनी बट मु कोन चेंज करली डिस्टेंस बिटवीन देम को मु डबल कर देई छी तो ए केस रे फोर्स ता केते हेबो न्यू फोर्स f डैश केते आसीबो जते बेले डिस्टेंस थला r से केस रे फोर्स केते थला फोर्स थला f तो एबे डिस्टेंस को मु 2r कर दिली डबल कर दोची तो एबे फोर्स केते हबो हमरा कैलकुलेट करबा तो देखो स्टूडेंट जते बेले डिस्टेंस थला r फोर्स केतला फोर्स थला f तो एबे फोर्स रो फार्मूला कोन आसीबो g m1 m2 by distance square डिस्टेंस अछि r तो मु r रो स्क्वायर लिखिबी तो जते बेले फोर्स सॉरी जते बेले डिस्टेंस ता डबल हे जिवो माने डिस्टेंस जते बेले 2r हे जिवो तो सेही केस रे न्यू फोर्स केते हबो g m1 m2 मास चेंज करा हेनी दैट्स व्हाई m1 m2 एठी मु सेम रखिली
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर तो एबे न्यू डिस्टेंस केते अछि न्यू डिस्टेंस अछि 2r तो एठी मु लिखिबी 2r रो होल स्क्वायर तो एटा केते हिजिबो एटा हिजिबो g m1 m2 by 4r स्क्वायर ताको मु लिखि परिबी 1/4 को बाहर को नहीं भी ए लिखि परिबी g m1 m2 by r स्क्वायर तो g m1 m2 by r स्क्वायर कोन एटा होची इनिशियल फोर्स जत्ते बेला डिस्टेंस ला r सही टाइम रे फोर्स केते थला फोर्स ला g m1 m2 by r स्क्वायर तो आको मु लिखि परिबी 1/4 into f ता माने f डैश बा न्यू फोर्स केते हला इनिशियल फोर्स रो 1/4 बा 1/4 टाइम्स तो डेफिनेटली जदी डिस्टेंस को में बढ़े बढ़े जिबा तो फोर्स कोन हो कमी कमी आसीबो आमे जदी डिस्टेंस कमी कमी आसीबा इफ वी टेक द टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू ईच अदर देन द फोर्स विल बी इंक्रीज्ड डिस्टेंस कमिले फोर्स इंक्रीज हबो डिस्टेंस बढ़िले फोर्स डिक्रीज हबो तो आमे एबे कोन करथले ना आमे एबे डिस्टेंस को 2 टाइम्स करथले डबल करथले सेथि पई कोनला फोर्सटा 1/4 टाइम्स हे गेला तो मन रखो डिस्टेंसटा जेते टाइम्स बढ़िबो डिस्टेंसटा जेते टाइम्स बढ़िबो तार स्क्वायर टाइम्स फोर्सटा कमी जिवो जदी मु एबे कोन करबी डिस्टेंस को 3r कर देबी 3 गुणा कर देबी 3 टाइम्स कर देबी तो एबे फोर्स केते आसीबो f/9 हे जिवो त माने 3 रो स्क्वायर आसी जिवो ठीक अछि जदी मो डिस्टेंस को 4r कर देबी तो न्यू फोर्स केते हे जिवो f/4 रो स्क्वायर बा 16 जदी मो डिस्टेंस को 5 टाइम्स कर देबी इफ द डिस्टेंस इज 5r तो न्यू फोर्स केते हे जिवो f/5 स्क्वायर बा 25 त माने आमे जो फॉर्मूला पढ़िले जे द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम तार मीनिंग कोन ना जदी मु डिस्टेंस को n टाइम्स बढ़ेबी जदी मु डिस्टेंस सपोज इनिशियली r थिला मु बे कोन करबी डिस्टेंस को nr कर देबी n टा 2 हे पारे 3 हे पारे 5 हे पारे 6 हे पारे 10 हे पारे जहा भी हे पारे जदी मु डिस्टेंस को n टाइम्स इंक्रीज करेबी ताले न्यू फोर्सटा कमी जिवो तो केते टाइम्स कमीबो ना 1/n² टाइम्स कमी जिवो ता माने न्यू फोर्स केते हबो ना इनिशियल फोर्स रो 1/n² टाइम्स एई फार्मूला को समस्ते मन रखिबो ओके आउ गोटे इंस मन रखो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव तमे देखिबो तमे क्लास 10th रे पढ़िबो अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स अबाउट मैग्नेटिक फोर्स okay so remember that this electric force magnetic force and the gravitational force they all are non contact forces ta mane they operate without any physical contact between the two bodies for example jodi mu a pen को ऊपर को थ्रो करिबी then कोन हबो पेन टा एटमॉस्फेयर रे मूव करूची तो अर्थ कोन करूची ना ए पेन को अट्रैक्ट करिबो ताड़ को तो कोन फाइनली पेन टा किछि बाट ऊपर गला परे अगेन से तळ खसिबो तो एठी अर्थ आउ पेन भितरे किछि फिजिकल कांटेक्ट नाही बट अर्थ पेन ऊपर किछि फोर्स अप्लाई करूची आको मैं कहबा नॉन कांटेक्ट फोर्स किंतु कांटेक्ट फोर्स कोन आमे जो गोटे बॉडी को पुश करूचे बा गोटे बॉडी को में पुल करिबा किंबा आमे किकिंग करिबा मस्कुलर फोर्स ऑल दिस फोर्सेस आर कांटेक्ट फोर्सेस किंतु आमे जानिचे जे मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दे आर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस किंतु आमे क्लास 10 रे पढ़ेबो अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स ता माने डिफरेंट चार्ज भितरे जो फोर्स थाए ताको में कहूचे इलेक्ट्रिक फोर्स सेमती मैग्नेटिक फोर्स कोन ना गोटे मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करे ऑन अदर मैग्नेट और ऑन द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक मटेरियल्स ताको में कहूचे मैग्नेटिक फोर्स तो मन रखे ता मैग्नेटिक फोर्स टा अट्रैक्टिव हे पारे किबा रिपल्सिव हे पारे जदि आमे नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल देखेबा रिपेल करिवो साउथ पोल को साउथ पोल देखेबा रिपेल करिवो आउ जदि नॉर्थ को साउथ पोल देखेबा अट्रैक्ट करिवो सेमती आमे यदि देखिबा इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज रिपेल करिवे नेगेटिव चार्ज रिपेल करिवे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करिवे ता माने इलेक्ट्रिक फोर्स आउ मैग्नेटिक फोर्स दे कैन बी अट्रैक्टिव दे कैन बी रिपल्सिव किंतु ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव
दुईटा मास भितर जो फोर्स आसीबो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव दिस फोर्स इज नेवर रिपल्सिव फोर्स एटा मन रखता दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स तो आमे गोटे पॉइंट कौन पाइले ना दिस फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आउ गोटे आमे पॉइंट कौन पाइले द ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive ठीक अच्छे आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कौन ना द ग्रेविटेशनल फोर्स is a central force तो ए सेंट्रल फोर्स रो मीनिंग कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स So students remember that a force acting between two bodies is said to be a central force if it acts along the line joining the two bodies. जदि आमे ए दीटा बॉडी भितर फोर्स बाहर करूचे व्हिच फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आमे गोटे सेंट्रल फोर्स कहूचे कौन पाई ना ए जो फोर्स टा एक्ट करूची बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इट इज एक्टिंग along this line joining the two object दीटा ऑब्जेक्ट को जो लाइन जॉइन करूची सेही लाइन रा along रे कोन फोर्स टा एक्ट करूची ता माने एबे m1 मास को m2 अट्रैक्ट करिवो ताड़ को ता माने एम्ति आसे फोर्स डायरेक्शन सेमिति m2 मास को m1 अट्रैक्ट करिवो टुवर्ड्स इटसेल्फ माने टुवर्ड्स लेफ्ट अट्रैक्ट करिवो तो ए जो फोर्स एक्ट करूची दिस फोर्स is directed along the line joining the two bodies से फोर्स टा ए लाइन रे काम करिवनी कि ए लाइन रे एक्ट करिवनी कि एमिति एक्ट करिवनी केमिति एक्ट करिवो along the line joining the two object is that clear तो जो फोर्स एक्ट करे between the line or along the line joining the two bodies that force is known as what it is known as the central force तो मन रखिता ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स आ गुडे कोन अछि इंपोर्टेंट पॉइंट ना ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स लाइक द टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन देम independent of the medium between them तार माने कौन ना आमे जो दीटा बॉडी भितर बाहर करूचे द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से दीटा बॉडी को मीडियम रे अछंती सेटा मैटर करे नाही फोर्स टा कहा पर डिपेंड करे मास ऊपर डिपेंड करे आ कहा पर डिपेंड करे ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम जदि में मास को चेंज करिबा फोर्स चेंज होबो जदि में डिस्टेंस को चेंज करिबा फोर्स चेंज होबो किंतु जदि में मीडियम चेंज करिबा मास आउ डिस्टेंस को फिक्स करके जदि में मीडियम चेंज करिबा मीडियम मीन सपोज एबे देखो ए रूम रे कोन मीडियम होचे एयर चारिपटे एयर अछि तो मु गोटे मास नेबी m1 आ गोटे मास नेबी m2 तांका भितर रखिबी डिस्टेंस r इन एयर तो सेही दीटा बॉडी भितर जेतिकी फोर्स आसीबो जदि मु से दीटा बॉडी को नेके पानी रे बुडी देबी वाटर इज सम अदर मीडियम ताको नेके कोन पानी भितर बुडी देली से सेम डिस्टेंस रखिली सपोज इन एयर द डिस्टेंस वाज 10 सेंटीमीटर एंड आई विल डिप द टू बॉडीज इनसाइड वाटर एंड दे विल बी एट द सेम डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ताहले तुम देखिबो फोर्स रे किछि भी चेंज आसीबो नाही सो द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम ताको मु एयर रखे कि इनसाइड वाटर रखे कि इनसाइड ग्लास रखे कि इनसाइड एनी अदर मीडियम जदि मु मीडियम चेंज करूची तले फोर्स रे किछि भी चेंज आसीबो नाही कोन पाई आमे जो लिखिजे फार्मूला F = G m1 m2 / r² देखो ए जो अच्छी कांस्टेंट है G आको में कहूचे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल मीनिंग कौन ना G रो वैल्यूटा ऑलवेज कांस्टेंट तमे जो भी मीडियम नियो सबु केस रे G रो वैल्यू कांस्टेंट आसीबो ओके
तो मास तो चेंज हेनी जदि आम गोटे बॉडी को आम रखुचे एयर रखुचे जेकोसी मीडियम रखुचे मास होची कौन गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी मास चेंज हेनी आम डिस्टेंस भी चेंज करोने तो डेफिनेटली फोर्स चेंज हेबो नाही किंतु आम पढ़िबा इलेक्ट्रिक फोर्स आउ मैग्नेटिक फोर्स क्लास 10 रे पढ़िबो इलेक्ट्रिक फोर्स आउ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करे मीडियम उपरे आम एयर रखिले अलग फोर्स आसीबो इनसाइड वाटर रखिले अलग फोर्स आसीबो इनसाइड स्टील रखिले अलग फोर्स आसीबो प्लास्टिक अलग आसीबो जदि मीडियम चेंज करी करी जिबा तले कोन हो फोर्स ता चेंज हेबो बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम आम जो मीडियम रखिले मध्य फोर्स रो वैल्यू सेम आसीबो सो दीज आर द डिटेल्स अबाउट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट तो आज ये क्लास रो मेन टॉपिक होची कौन ना आमे आज पढ़िबा द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ सिंस वी आर लिविंग ऑन अर्थ तो आमे आज पढ़िबा जे अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ तो स्टूडेंट्स मन रख जे आमे कौन पढ़ले ना एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन ओके ग्रेविटेशनल फोर्स सेमती अर्थ भी कौन करुच्ची ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ता सेंटर आड़ को अट्रैक्ट करुच्ची तो अर्थ रो जो अच्छी फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ हैज ए स्पेशल नेम ताको मैं कहूचे ग्रेविटी सो आज मैं पढ़िबा अबाउट ग्रेविटी ग्रेविटी मीनिंग कौन ना द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ the gravitational force of earth is called gravity तमाने अर्थ कौन करिवो ना प्रत्येक ऑब्जेक्ट को कौन ता आड़ को अट्रैक्ट करिवो ता सेंटर को अट्रैक्ट करिवो ताको हम कहूचे ग्रेविटी अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर ठीक अच्छे फॉर एग्जांपल जदि मु ए पेन के ड्रॉप करी डेफिनेटली पेन तले खसब जदि मु गोटे बॉल को ऊपर को थ्रो करी कौन हम ना बॉलटार स्पीड कमी कमी जीव एंड आफ्टर सम हाइट बॉलटा रेस्ट को पड़े आसो एंड देन द बॉल विल फॉल डाउन तो आम कौन देखुचे ये ना अर्थ कौन करुच्ची प्रत्येक ऑब्जेक्ट उपरे किसी ना किसी फोर्स अप्लाई करुच्ची आमे इमेजिन कर जदि अर्थ रो ग्रेविटी न था देन आमे समस्ते एटमॉस्फेयर रे कौन आमे फ्लोट करवा भासीबा बट आमे कौन पाई अटैच अच्छे आमे कौन पाई ग्राउंड को अटैच अच्छे जदि मुझे जंप करी देन डेफिनेटली मु केबे भी माने माने फ्लोट करिबिनी मु अगेन तळु खसिबी ठीक अच्छे तो एटा कहीं पॉसिबल होची ड्यू टू ग्रेविटी आम बॉडी रो जो वेट अच्छी से वेट भी कौन पाई अच्छी ड्यू टू ग्रेविटी आम ए डिस्कस करवा इन द नेक्स्ट क्लास आम डिस्कस करवा जे आम बॉडी रो वेट जहाँ अच्छी अर्थ रे जदि आम मून को पळेबा कौन हो वेटा 1/6 टाइम्स हो जदि आमर वेट अच्छी 300 न्यूटन कोठी ऑन अर्थ जदि आम मून को पळेबा आमर वेट केते हो 50 न्यूटन हो माने 6 भागरू भागे हो तामाने आम बॉडी रो वेट डिपेंड करुच्ची ऑन ग्रेविटी आम जो चलुचे आमर कौन आम जेहेतु ग्राउंड को टच करिक अच्छे कहीं ड्यू टू ग्रेविटी जेकोसी बॉडी जदि आम ड्रॉप करवा सी तल खसब ड्यू टू ग्रेविटी तो मन रखता अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर एंड दैट फोर्स विथ व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटी ठीक है तामाने जदि आम जेकोसी बॉडी कंसीडर करवा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और नियर द अर्थ प्रत्येक बॉडी उपर अर्थ किसी ना किसी फोर्स अप्लाई करुच्ची आम उपर अर्थ फोर्स अप्लाई करुच्ची ए पेन उपर भी अर्थ फोर्स अप्लाई करिवो एवरी ऑब्जेक्ट उपर अर्थ फोर्स अप्लाई करिवो तो जदि आम गोटे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करुचे देन द बॉडी इज एक्सेलरेटेड न्यूटन सेकेंड ला कौन कहूची न्यूटन सेकेंड ला कहूची फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तामाने जदि गोटे बॉडी उपर फोर्स एक्ट होउची तामाने से बॉडी रो किछि ना किछि एक्सेलरेशन थिबो इज दैट क्लियर तामाने जदि अर्थ प्रत्येक बॉडी उपरे किछि फोर्स अप्लाई करूची देन डेफिनेटली से फोर्स पाई से बॉडी रो किछि ना किछि एक्सेलरेशन थिबो
तो अर्थ रो ग्रेविटी पाई ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ जहाँ भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए बॉडी रे ताको हमें गोटे नेम देइचे ताको कहा जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आज हमें डिस्कस करिबा अबाउट दिस टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तार सिंबल होची स्मॉल जी, कैपिटल जी होची यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी होची कौन ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आम डिराइव करवा गोटे एक्सप्रेशन अबाउट दिस और एक्सप्रेशन फॉर दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो लेट मी ड्रॉ ए फिगर हियर। सपोज इट होची अर्थ, ओके, एंड अर्थ रा सरफेस उपरे सपोज गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी, ठीक अच्छे। सपोज इमेजिन कर गोटे स्टोन अच्छी अर्थ सरफेस उपरे किंबा सरफेस किसी दूर अच्छे। वर्तमान अर्थ रा सेंटर होची ओ, सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द स्टोन, ठीक अच्छे। एंड सपोज एज्यूम दैट कैपिटल एम होची अर्थ रा मास आउ स्मॉल एम होची ए जो ऑब्जेक्ट अच्छी से ऑब्जेक्ट रा मास। से ऑब्जेक्ट मुँह हो पारे किंबा एनी अदर बॉडी हो पारे, ठीक अच्छे। तो एमती कंडीशन अच्छे। तो वर्तमान आमे देखिबा जे ए जो दीटा सेंटर रहिला से दीटा सेंटर भितरे डिस्टेंस केते। तो देखो ये अर्थ रो रेडियस, द रेडियस ऑफ अर्थ, ओके, द रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर तार वैल्यू केते 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। 6.4 × 10⁻6 मीटर एंड दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज वैल्यू। तो आमे जहाँ भी ऑब्जेक्ट देखुचे अराउंड अस से ऑब्जेक्ट रो साइजटा बहुत स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ। सपोज आमे गोटे बड़ बहुत बड़ पर्वत कहबा किंबा गोटे व्हीकल कहबा कि जहाँ भी कहबा, एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज डेफिनेटली स्मॉलर एज कंपेयर टू अर्थ, ओके। तो वर्तमान देखा गले आमे ए जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आसुची, देखो पॉइंट ओ रु ए पॉइंट जाए एटा होची अर्थ रो रेडियस, ठीक है। तो तापर जो ऑब्जेक्ट अच्छी, सपोज बर्तमान आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मोर हाइट जहाँ थी माई हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दिस अर्थ। तामाने आमे एप्रोक्सीमेटली कहि परिबा जे ए जो दीटा ऑब्जेक्ट अच्छी अर्थ रो सेंटर और ए बॉडी रो सेंटर जो अच्छी तांका भितर डिस्टेंसटा ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। कहीं ना एक्स्ट्रा जो लेंथ आसूची दैट लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। से आमे कौन एज्यूम करिबा जे अर्थ उपरे जहाँ भी ऑब्जेक्ट अच्छी से ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस अर्थ रो सेंटर रु केते ना कैपिटल आर। एंड व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर होची रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक अच्छे। तो आम पाखरे दीटा ऑब्जेक्ट अच्छी आ से दीटा ऑब्जेक्ट रो सेंटर भितरे डिस्टेंस केते आसूची ना कैपिटल आर। तो आम जब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करिबा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करिबा, आमे बाहर करि परिबा व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक अच्छे। अर्थ केते अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करूची ए बॉडी ऊपर। तो एफ केते हे जिवो? एफ हे जिवो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला कौन था? फॉर्मूला था जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। एठी m1 माने कौन? अर्थ रो मास, ताको मैं लिखली कैपिटल एम। m2 कौन? ए बॉडी रो मास, ताको मैं लिखली स्मॉल एम बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस केते अछि? कैपिटल आर। कैपिटल कौन? कैपिटल आर होची रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक अछि। सो इटा होची फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। अर्थ ए बॉडी उपरे जो फोर्स अप्लाई करूची सेटा होची तार वैल्यू होची एतिकी, ठीक अछि। तो आमे भी देखिबा जे ए बॉडी उपरे बा ए बॉडी रे केते अमाउंट रो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हबो, ठीक अछि। केते अमाउंट रो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हबो। तो एक्सेलरेशन रो फॉर्मूला कौन? फॉर्मूला होची फोर्स बाय मास, ठीक अछि। एक्सेलरेशन रो फॉर्मूला कौन? फॉर्मूला होची फोर्स बाय मास। तो फोर्स केते ना जी एम बाय आर स्क्वायर। सेतरे मो मास को डिवाइड करिवि, ठीक अछि। यदि मास को डिवाइड करिवि एम कैंसिल हो जिवो, तो एटा केते हो जिवो जी एम बाय आर स्क्वायर, ओके। जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये जो असले एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
अर्थ जो ग्राविटी अच्छी से ग्राविटी आसूची ये एक्सेलरेशनटा से ए रो गोटे नेम अच्छी कहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी आ सिंबल है कौन सिंबल हूँ स्मॉल जी तो ये को लिखी दूची स्मॉल जी तार वैल्यू केते आसीबो जी एम बाय आर स्क्वायर इज दैट क्लियर केते आसीबो जी एम बाय आर स्क्वायर ओके सो वर्तमान आम जदि वैल्यू को बाहर करवा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी तो केते आंसर आसीबो देखो कैपिटल जी कौन कैपिटल जी हूँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू कैपिटल एम कौन मास ऑफ अर्थ मास केते 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम डिवाइडेड बाय आर केते आर होची दिस मच 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर तो लिखिदेव 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 तार स्क्वायर करिवो सबू कैलकुलेशन सरला परे आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर केते आसीबो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ता माने अर्थ रो जो ग्रेविटी अच्छी ग्रेविटी पाई एवरी ऑब्जेक्ट रे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए से एक्सेलरेशन रो वैल्यू केते तार वैल्यू होची 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दैट क्लियर अच्छा किंतु मन रखि तो आम ये जो वैल्यू बाहर कर गोटे एवरेज वैल्यू किंतु आम जाने कौन अर्थ हूँ कौन अर्थ गोटे कंप्लीट गोटे परफेक्ट स्फीयर नुहे ठीक अच्छे कौटी माने बहुत बड़ा बड़ा पर्वत थी तो से केस रे कौन आर्टा अधिक होटी खाल थी आर्टा कमिज तो जेहेतु कौन अर्थ गोटे परफेक्ट स्फीयर नुहे से द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट सेम एवरीवेयर जदि कौन अर्थ गोटे परफेक्ट स्फीयर था ताहले प्रत्येक प्लेस रे एवरी लोकेशन रे कैपिटल आर वैल्यू सेम होता एंड इन दैट केस स्मॉल जी वैल्यू भी सेम होता बट आम कौन जाने आर्टा गोटे परफेक्ट स्फीयर नुहे ठीक अच्छे एंड आम लोअर क्लास रे पढ़ीचे कौन ना एट द पोल नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल रे कौन आर्टा टिके चेप्टा थाए ठीक है लाइक दिस डिप्रेस्ड तार जब फिगर ड्र करी द फिगर कैन बी लाइक दिस एट द पोल्स कौन होची द अर्थ इज स्लाइटली डिप्रेस्ड तार माने जदि मुझे कंपेयर करी मुझे पॉइंट रे अच्छी ये पॉइंट रे जहाँ हम रेडियस ये पॉइंट रो रेडियसटा कमिज तार माने एट द पोल आर इज मिनिमम ठीक अच्छे पोल रे आम नॉर्थ पोल हो कि साउथ पोल हो दीटा को पोल रे कौन हुए अर्थ रो रेडियस कम थाए जेहेतु अर्थ रो रेडियस कम अच्छी से कौन हम देख जदि आर कमीगला स्मॉल जी बढ़ी तार माने जी कौन हम जी हम मैक्सिमम जी विल बी मैक्सिमम इज दैट क्लियर तार माने जदि आर रो वैल्यू कमिला जीरो वैल्यू बढ़िबो जदि आर रो वैल्यू बढ़िला जीरो वैल्यू कमिबो तार माने आम यदि अर्थ डिफरेंट लोकेशन कंपेयर करबा सबुठारु को जगह रे रेडियस कम थाए ना एट द पोल रे अर्थ रेडियस कम थाए मिनिमम थाए और जेहेतु अर्थ रेडियस मिनिमम एट द पोल्स तार माने जीरो वैल्यू मैक्सिमम आसीबो किंतु एट द इक्वेटर रे कौन हुए लेट मी राइट हियर एट द इक्वेटर रे कौन हुए ना आर होची मैक्सिमम अर्थ रेडियस होची मैक्सिमम आर इज मैक्सिमम जदि आर टा बढ़ीगला मैक्सिमम होला जी कौन हम कमी जीवो सो जी विल बी मिनिमम तो मन रखता आम जो लिखुचे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यूटा गोटे एवरेज वैल्यू निहाई दिस इज नॉट फिक्स तार माने अर्थ सब लोकेशन रे वैल्यूटा सेम थाए कोटी 9.78 थी कोटी 9.82 81 एम थी कि एवरेज वैल्यू का निया जाए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निया जाए बट रिमेंबर दैट एट द पोल जी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर जी इज मिनिमम एंड आउ गोटे पॉइंट मन रखता जदि आम अर्थ सरफेस रू ऊपर को मूव करवा विथ हाइट आम अर्थ सरफेस जिते ऊपर को जीवा कौन हम जीरो वैल्यू कमी कमी आसो कहीं आम जाचे जदि दुईटा ऑब्जेक्ट भितर डिस्टेंसटा बढ़ी बढ़ी जीव कौन हम तांको भितर एट्राक्टिव फोर्स कमी कमी आसो जदि मु अर्थ सरफेस ऊपर अच्छी मो ऊपर जेतिकी अमाउंट रो फोर्स एक्ट करुच्ची जदि मु एबे अपवर्ड मूव करी
अधिक हाइट को पळेबी तले कोन हबो डेफिनेटली जो अट्रैक्टिव फोर्स कोन हिबो कमी जिवो एंड दैट्स व्हाई तमे देखिथिबो हमर जो एटमॉस्फेयर अछि एटमॉस्फेयर माने कोन हमर जो गैस अछि मोस्ट ऑफ द गैसेस अछंदी कोठी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ आमे जदी गोटे बहुत बड़ हिली एरिया को जिबा आमे दी बहुत बड़ आमे जानचे जे जोन सब चढ़ंती एवरेस्ट शृंग चढ़ंती तो हिमालय बा एवरेस्ट जानती से माने ऑक्सीजन टैंक नियंती काहे कि ना विथ हाइट जदि माने अधिक हाइट को पळेबे कोन हुए सेठी ग्रेविटी कम थाए एंड दैट्स व्हाई हमर जो गैस थाए गैस रो डेंसिटी सेठी कम थाए मोस्ट ऑफ द गैसेस को थांती एट लेस हाइट आमे दि अधिक हाइट को पळेबा कोन हे जिवो गैस रो अमाउंट कमी जिवो माने ऑक्सीजन भी कमी जिवो डेंसिटी कमी जिवो दैट्स व्हाई दे टेक व्हाट दे टेक ऑक्सीजन टैंक विथ देम सो आमे बे कोन पढिले आमे पढिले जे अर्थ पाई बा अर्थ जो ग्रेविटी अछि ग्रेविटी पाई जो आसुची एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन रो वैल्यू केते ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज द एवरेज वैल्यू आउ स्मॉल g रो वैल्यू होची मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर ठीक अछि एंड विथ हाइट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g डिक्रीजेस आमे अर्थ रो सरफेस रु जेते ऊपर को मूव करिबा तले कोन हबो स्मॉल g रो वैल्यू से अनुसार कमी आसीबो इज दैट क्लियर सो आमे एबे एई कांसेप्ट को यूज करके आमे चैप्टर फिजिक्स जो फर्स्ट चैप्टर थला मोशन आमे से मोशन चैप्टर रे आमे पढिथिले तीनटा इक्वेशन पढिथिले इक्वेशंस ऑफ मोशन कोन पढिथिले गोटे होची v = u + at आ गोटे होची s = ut + हाफ at स्क्वायर आ गोटे होची v² - u² = 2as ठीक अछि तो एबे एई तीनटा इक्वेशन को हम यूज करके आमे किछि नुवा जिंस सिखिबा तो एबे नेक्स्ट टॉपिक में कोन पढिबा फ्री फॉल द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल सो फ्री फॉल र मीनिंग कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल देखो जदी गोटे बॉडी मूव करूची अंडर द इफेक्ट ऑफ ओनली ग्रेविटी okay if a body moves under the effect of gravity only then its motion is said to be free fall if a body falls under the effect of gravity only it is said to be a free fall. Free fall means what? Free fall means its motion, the motion of the body is not affected by any other parameters, any other quantities or any other agencies except gravity. केवल गोटे ही फोर्स से बॉडी रे ऐड करथबो जोडा होची फ्री फॉल ठीक अछि तो वर्तमान आमे जानले जे कोन अर्थ पई जो आसुची एक्सीलरेशन तार वैल्यू केते ता वैल्यू होची स्मॉल g ठीक अछि तो हम देखिबा जदी गोटे बॉडी ग्रेविटी अंडर रे मूव करूची तो सेही केस रे आमे केमती ए इक्वेशन को यूज करि परिबा फॉर एग्जांपल देखो सपोज गोटे बिल्डिंग अछि ठीक अछि से बिल्डिंग रा हाइट केते बिल्डिंग रा हाइट होची h ओके बिल्डिंग रा हाइट होची h तो मु ए बिल्डिंग रा टॉप रु गोटे बॉडी को ड्रॉप करिवि ठीक अछि त माने ग्राउंड एटा होची ग्राउंड ठीक अछि तो बा अर्थ सरफेस एटा मु अर्थ रा सरफेस रु बा ग्राउंड लेवल रु h हाइट ऊपर अर्थ सरफेस रु कोन h हाइट ऊपर गोटे बॉडी को ड्रॉप करिवि ठीक अछि तबे कोन हबो बॉडी तळ खसिबो आसे एडी पडिबो त हम देखिबा जे से बॉडीटा केते टाइम रे आसे तळे पहुंचिबो ठीक अछि केते टाइम रे बॉडी आसे तळे पहुंचिबो आ कोन देखिबा ना जेते से तळे से पहुंचिबो से बॉडी रो स्पीड के थिबो हमें देखु जे जदी मु एबे ए पेन को सपोज सम हाइट रो ड्रॉप करिवि एबे पेन रेस्ट रे अछि ड्रॉप कला परे कोन होची पेनटा तळे खसुची जेते पेन तळे खसुची एबे कोन होची बॉडी रो से पेन रो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होची काहे कि ना ए बॉडी ऊपर अर्थ रो एक्सेलरेशन काम करूची
आम जाचे जदि गोटे बॉडीटा एक्सिलरेट हुए तार स्पीड बढ़ी बढ़ी जीव तार स्पीड बढ़ी बढ़ी आसूँ यही पॉइंट रे आम जो बॉडी को ड्रॉप करते बॉडीर इनिशियल स्पीड केते यू था 0 ठीक अच्छे जिते बॉडी तले खसब ग्राजुअली तार स्पीड बढ़ी बढ़ी जीव तो बाहर करवा दुटा जिनस गोटे कौन ना केते टाइम लगे ए बॉडी को तले पड़ापी एंड व्हेन द बॉडी विल रीच एट द ग्राउंड तार केते स्पीड थी ठीक अच्छे तो केमी बाहर करवा आम जहाँ भी डिराइव करवा आम यूज करवा दिस 3 इक्वेशंस ये 3टा इक्वेशन को आम यूज करके आम सब जिन डिराइव करवा तो देख ये जिते बड़े बॉडी यही हाइट रू आम ड्रॉप करोचे तो सही केस रे से केते डिस्टेंस कवर करुच्ची h ठीक अच्छे आ बॉडी रो इनिशियल स्पीड केते u ठीक अच्छे आ जो बॉडी तल खसुची से बॉडी उपरे केते हला एक्सेलरेशन होची a इक्वल टू g इज दैट क्लियर ओके तो आम पाखे डिस्टेंस जना अच्छी वी नो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस जोटा होची h u जना अच्छी आ a जना अच्छी आमको t बाहर करार अच्छे टाइम बाहर करार अच्छे तो कौटा यूज करवा डेफिनेटली आम यूज करवा सेकेंड फॉर्मूला s जना अच्छी u जना अच्छी a जना अच्छी वी हैव टू फाइंड t सो वी हैव टू यूज द सेकेंड फॉर्मूला तो आम लिखा ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आम ये फॉर्मूला यूज करके बाहर कर जे केते टाइम लगे बॉडी को आसिक तले स्ट्राइक करने तो s केते s हूँ हाइट h लिखली u केते u0 कहीं आम बॉडी को ड्रॉप करुचे हाथ में धरी ड्रॉप करवा तमें इनिशियली कौन बॉडीटा रेस्ट रे अच्छी सो यू को आम 0 पुट करवा सो 0 इंटू टी के 0 हो प्लस हाफ ए है के हूँ g इंटू टी स्क्वायर करदेली दैट इम्प्लाइज h के 0 इंटू टी के 0 सो h इक्वल टू हाफ g टी स्क्वायर सो एबे हमको टाइम बाहर करार अच्छी तो देख ये टी स्क्वायर केते हम 2h बाई g ठीक अच्छे द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर विल बी 2h बाई g जदि टी स्क्वायर हूँ 2h बाई g तो टी केते हम ना स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई g ठीक अच्छे तो आम यही फॉर्मूला यूज करके बाहर करिपरिबा जदि मो गोटे बॉडी को h हाइट रू ड्रॉप करुच्ची ताको केते टाइम लगिबो ग्राउंड रे पहुँचवा पाई जदि हाइट रो वैल्यू जना अच्छी आमे वेरी इजीली कैलकुलेट करिपरिबा टाइम h जना अच्छी आमको g जना अच्छी g केते g होची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किंतु किछि किछि प्रॉब्लम रे क्वेश्चन रे मेंशन थाए जे पुट g इक्वल टू 10 g रो वैल्यू केते ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किंतु किछि किछि प्रॉब्लम रे माने इजीली सॉल्व करिया पई से मेंशन करथाए जे पुट g इक्वल टू 10 तो जो क्वेश्चन रे g इक्वल टू 10 पकेया को माने मेंशन करिथिबो तमे से क्वेश्चन सॉल्व कला बेले g को 10 पके देबो इजीली सॉल्व हो जिवो किंतु जदि g इक्वल टू 9 जदि g इक्वल टू 10 पुट करे को मेंशन करिनी देन ऑलवेज पुट 9.8 ओके so this is the formula of time in which the body will hit the ground or reach at the ground level then आमे कोन बाहर करबा एई पॉइंट रे बॉडी रो इनिशियल स्पीड केतला 0 थिला तो एबे जो बॉडी तळु खसिबो तार स्पीड बढ़ी बढ़ी जीवो एंड व्हेन द बॉडी विल रीच एट द ग्राउंड तार किछि गोटे मैक्सिमम स्पीड थिबो तो सेई स्पीड केते हबो ठीक अछि स्पीड ऑफ द बॉडी स्पीड of the body when it reaches the ground जेते बॉडी आसी ग्राउंड रे पहुँचबो सेई टाइम रे बॉडी रो स्पीड केते हबो तो हमें एई फॉर्मूला डिराइव करिया पई कोडा यूज करबा तुमको मु बारंबार कहिछि जे तीनरा फॉर्मूला भितर हम यूज करबा ठीक अछि देखो आम पाखे जना अछि कोन ना केते डिस्टेंस से कवर करूची जना अछि ठीक अच्छे क्वेश्चन रे कौन कही खाली कही हाइट कही एतिक हाइट रो ड्रॉप करुचे ठीक अच्छे खाली हाइट गिवेन थी आउ इनिशियल स्पीड 0 में जानी कहीं आम ड्रॉप कर कौन आम हाथ में धरी छाड़देवा ठीक अच्छे तार u0 u जना अच्छी आ कौन डिस्टेंस s जना अच्छी आमको आउ कौन जना अच्छी a जना अच्छी कहीं फ्री फॉल को फोर्स ऐड करुच्ची ग्रेविटी ऐड करुच्ची तार ए केते g हम
तो आमे को फॉर्मूला यूज कले आमे v पाई जिबा ना द लास्ट फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as u जणा अछि a जणा अछि s जणा अछि v बाहर करिवार अछि सो आमे बे कोन करबा यूज करबा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as फॉर्मूला अप्लाई करबा ठीक अछि तो v स्क्वायर माइनस u केते u होछि 0 सो 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इनटू a केते a होछि g s केते s होछि h जो हाइट से खसिबो सेटा होछि s हमको v बाहर करिवार थला सो v स्क्वायर केते गेला इक्वल टू 2gh तो v केते हबो v हे जिवो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh दिस इज अनदर फॉर्मूला ता माने जदी हाइट कहिथिबो आमे गोटे बॉडी को सपोज 10 मीटर बा 20 मीटर बा 100 मीटर हाइट रो में ड्रॉप करूचे तले जेतले से बॉडी तळे पहुंचीबो ग्राउंड रे पहुंचीबो केते स्पीड रे पहुंचीबो आमे ताको बाहर करि परबा यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 into g केते 9.8 into h जहा कहिथिबो से वैल्यू पुट कर देबो यू कैन गेट आंसर सो टाइम पाइले केते टाइम होची स्क्वायर रूट ऑफ 2h by g और v केते पाइले ना स्क्वायर रूट ऑफ 2gh so you have to remember this formula to solve questions based on this free fall or motion under gravity तो आमे बे आओ कि फॉर्मूला पे डिस्कस करिबा based on this motion under gravity what are those formulas suppose moi कोन करिवि ना गोटे बॉडी अछि suppose मो गोटे बॉल नेबी से बॉल को मो कोन करिवि u स्पीड रे ठीक अछि u स्पीड रे ऊपर को थ्रो करिवि त माने सरफेस ऑफ अर्थ रु मु कोन कली ना u स्पीड रे गोटे बॉडी को ऊपर को थ्रो कली तबे कोन हबो बॉल टा ऊपर को जीवो आ कोन हबो धीरे धीरे बॉल रो स्पीड कमी कमी जीवो एंड किछि हाइट गला परे बॉल रो स्पीड 0 हो जीवो तापरे कोन हबो बॉल अगेन तळ खसिबो ठीक अछि तमे देखिबा जदी क्वेश्चन रे कहिथिबो जे आमे बॉल को सपोज 5 मीटर पर सेकंड बा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड रे थ्रो कले तले से बॉल टा केते हाइट कवर करिवो ठीक अछि ता माने जदी इनिशियल स्पीड गिवन थिबो आमे गोटे बॉल को एतिके स्पीड रे थ्रो कले तले से बॉल टा केते हाइट कवर करिवो बाहर करिवो आ कोन बाहर करिवो से बॉल टा केते टाइम रे मैक्सिमम हाइट रे पहुंचीबो ऊपर गला एठी कोन रेस्ट हे जिवो तापर तळ खसिबो तो केते टाइम रे मैक्सिमम हाइट रे पहुंचीबो ताको बाहर करिबा आ कोन बाहर करिबा आमे सपोज 8 एबे आमे बॉल को थ्रो कले तो केते टाइम पर बॉल अगेन आसिके हम हाथ रे पड़िबो ठीक अछि जीवो आ आसिके हम हाथ रे पड़िबो ठीक अछि ओके तो आमे फर्स्ट कोन बाहर करिबा मैक्सिमम हाइट ठीक अछि मैक्सिमम हाइट केते हला जदि मैं गोटे बॉडी को u स्पीड रे ऊपर को थ्रो करूचे ताले तार मैक्सिमम हाइट केते हबो ठीक अछि सोडी हमें कोन करबा आमे जानिचे जे आमे जो थ्रो करूचे तार इनिशियल स्पीड केते u अछि आ जदि से एतिके हाइट कवर करूची मानकर से h हाइट कवर करूची h हो तार मैक्सिमम हाइट तले ए टॉप पॉइंट रे तार केते हे जिवो स्पीड 0 हो जिवो काहे कि तार स्पीड कमी कमी जिवो और हाईएस्ट पॉइंट रे तार स्पीड 0 हो जिवो आ एठी केतला एक्सेलरेशन एठी होची a होची -g ठीक अछि a केते हबो -g हबो कोन पई ना जत्ते बेले बॉडीटा ऊपर को मूव करूची हमर जो अच्छी ग्रेविटी फोर्सटा ग्रेविटी होची डाउनवर्ड ठीक अछि ग्रेविटी फोर्स इज डाउनवर्ड तो जत्ते बॉडी तळ खसुथिबो व्हेन द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड सेतेले कोन हबो ना ग्रेविटी फोर्सटा बॉडी को अट्रैक्ट करिवो त माने से मोशन कोन डाउनवर्ड मोशन को सपोर्ट करिवो कि ग्रेविटी किंतु जदी बॉडीटा ऊपर को मूव करूची ग्रेविटी काम करूची तळ को किंतु बॉडी मूव करूची ऊपर को तो सेही केस रे कोन हबो ना ग्रेविटी अपोज करिवो ठीक अछि बॉडी रो मोशन को ग्रेविटी अपोज करिवो सेति पई हमें a को लिखिबा -g तो मन रखिताओ फॉर अपवर्ड मोशन a = -g फॉर डाउनवर्ड मोशन a = +g तो जेतेले बॉडी ऊपर को जाउची हमें a को लिखिबा -g जेतेले बॉडी तळ खसथिबो a को लिखिबा +g ठीक अछि तो हमें जेतेले बाहर करिबा मैक्सिमम हाइट केमिति बाहर करिबा हमें यूज करिबा को फार्मूला ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as फार्मूला अप्लाई करिबा ओके सो
v स्क्वायर ता 0 हो जिवो काहे हाईएस्ट पॉइंट रे तार स्पीड 0 हो जिवो माइनस u स्क्वायर माने कोन u इनिशियल स्पीड आमे u स्पीड रे थ्रो करचे तो आको u स्क्वायर लिखि दियो इक्वल 2 इनटू a कते a होची माइनस g s कोन s होची मैक्सिमम हाइट जदि से एतिक हाइट जाउ त हमें मैक्सिमम हाइट कहबा बा hm सो hm माने कोन hm होची मैक्सिमम हाइट सो हमें कोन पाइले एठी माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g hm सो माइनस माइनस कैंसिल हो जिवो त हमें hm केते पाइबा hm विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g ता माने जदी हमको जणा अछि से आमे केते स्पीड रे बॉल को थ्रो करिचे जदी हमको u रो वैल्यू जणा अछि देन आमे सिंपली ए फार्मूला रे u वैल्यू पुट कर देबा g त हमको नोन अछि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो ए फार्मूला यूज करै बाहर करि परिबा जे केते हाइट बॉडी कवर करिवो इज दैट क्लियर तो एटा होछि फर्स्ट फार्मूला ता पर हम कोन बाहर करिबा जे केते टाइम रे आसिकी टॉप पॉइंट रे पहुंचीबो जदी मो सपोज टाइम t इक्वल टू 0 रे मो कोन कली ना बॉडी को थ्रो कली अपवर्ड तो केते टाइम लागिबो बॉडी को जे कि टॉप पॉइंट रे पहुंचीबा पई तो ता पई मु कोन यूज करबी मु यूज करबी ए फार्मूलाटा v इक्वल टू u प्लस at यूज करबी तो टाइम बाहर करिवार अछि ठीक अछि तो v केते 0 टॉप पॉइंट रे बॉडी रो स्पीड 0 हो जिवो u केते u को u लिखिबी a केते -g और t को मु कोन लिखिबी t को लिखिबी t को लिखिबी ta a माने कोन असेंड तो मु कहली अपवर्ड मोशन को हमें कहबा असेंडिंग मोशन आउ द डाउनवर्ड मोशन इज नोन एज डिसेंडिंग मोशन ता माने ऊपर को जो मूव करूची असेंडिंग मोशन पई जेतिकी टाइम लागिबो ताको म कहबी TA ठीक अछि सो -gTA को लेफ्ट को नै जिबा रहे जिवो +gTA = u हे गेला तो TA केते हे जिवो u/g हे जिवो ता माने जदी हमें गोटे बॉडी को u स्पीड रे ऊपर को थ्रो करूचे ताले टॉप पॉइंट रे पहुंचीबा पई से बॉडी को केते टाइम लागिबो ना u/g टाइम लागिबो ठीक अछि अच्छा टॉप पॉइंट रे पहुंचला परे एबे कोन हबो बॉडीटा अगेन तळो खसिबो जेतले बॉडी तळो खसुची तो से सेम टाइम रे तळो खसिबो ठीक अछि जदी बॉडी को ऊपर पहुंचे पई माने अर्थ रा सरफेस रु टॉप पॉइंट रे पहुंचे पई जदी बॉडी को 5 सेकंड लागुची देन टॉप पॉइंट रु पुणी तळो आसे पई से सेम 5 सेकंड लागिबो ठीक अछि तो जीवो 5 सेकंड रे आसीबो 5 सेकंड रे तो टोटल टाइम केतला 5 + 5 10 सेकंड सेमिति हमें एठी कोन डिराइव करले फार्मूला जे असेंडिंग मोशन पई टाइम लागुची केते ना u/g तले डिसेंडिंग मोशन पई टाइम केते हबो u/g ठीक अछि तो असेंडिंग पई टाइम झा डिसेंडिंग पई टाइम से तो टोटल टाइम ऑफ मोशन केतेला कैपिटल T हला कोन सम ऑफ TA एंड TD TA को हमें TD रे मिसै देबा तो केते हबो u/g + u/g एटा हे जिवो 2u/g सो द टोटल टाइम ऑफ मोशन केतेला 2u/g ता माने जदी क्वेश्चन पचार थिबो हमें गोटे बॉडी को थ्रो कले बॉडी मूव कला आसिकी सेम पॉइंट रे पहुंचीबो हमें जो पॉइंट रे थ्रो करथिबा से सेम पॉइंट रे पहुंचीबो केते टाइम लागिबो हमें ए फॉर्मूला यूज करबा t = 2u/g तो तमो भी कहली जे टाइम ऑफ डिसेंट विल बी सेम एज टाइम ऑफ असेंट तमे एटा निजे भी डिराइव करि परिबो ठीक अछि दिस इज योर होमवर्क यू कैन प्रूव दैट टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट तमको बारंबार कहि छी तमे जहां भी डिराइव करिवो ऑल द डेरिवेशन you can take the help of these three formulas ए तीनटा फार्मूला को छाड़ दिला परे आओ किछि फार्मूला यूज होबनी ए तीनटा फार्मूला को यूज करके तमे जहां किछि डिराइव करि परिबो अबाउट दिस टॉपिक इज दैट क्लियर सो आमे बे कोन पढले आमे जे पढिले अबाउट सम special points of gravitation or the force of gravitation then we talked about gravity the acceleration due to gravity its expression how it differs from place to place then we discuss about free fall and all these derivations is that clear so jodi ajiro class re jaha padhai chi everything you can understand then
please hit the like button, and if you are new to my channel, then please subscribe to it and press the bell icon to get all the future notifications, and share this video among your friends so that everyone will be benefited. And again, thanks a lot for watching this one.